I'll begin this discussion with a small poem which I've just recently written. हिसार के पास एक गांव में एक हवेली खड़ी थी, ईंटों से नहीं, अनुभव से बनी हुई। उसकी दीवारें मोटी थी, जैसे समय का भरोसा समेटे हो। लाखौरी ईंटें गर्मी को बाहर रोक लेती, ठंड को भीतर सहेज लेती। घर के बीचों बीच था एक आंगन, आकाश से संवाद करता हुआ। सुबह की धूप धीरे धीरे उतरती, जैसे किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद। गर्मियों में आंगन सांस लेता था, गर्म हवा ऊपर उठती, ठंडक भीतर उतर आती। सर्दियों में यही आंगन परिवार को धूप में समेट लेता। गहरी छज्जाएं सिर्फ छाया नहीं देती थी, वह समय को थामे रखती थी। जालियों के पार नजरें दुनिया देखती और मर्यादा चुपचाप लहरा देती। रात को छत आसमान बन जाता और तारे घर के सबसे करीबी रिश्तेदार। जब मैंने एक वास्तुकार ने पूछा, इस घर का नक्शा किसने बनाया है, तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, इसे किसी इंसान ने नहीं, मिट्टी, मौसम और पीढ़ियों की समझ ने बनाया है। यही है हरियाणा की वास्तुकला, जहाँ इमारतें लोगों के लिए बनती हैं और घर दिल से सांस लेते हैं। और फिर आया गुरुग्राम, जहां मिट्टी से नहीं, कांच और कंक्रीट से सपने गढ़े गए। दुनिया के मशहूर वास्तुकार आए, रेखाएं खींची, आकाश को छूती इमारतें उगी। दूर दूर से लोग आए इस नए हरियाणा को देखने, चमकता हुआ, तेज, वैश्विक। कांच की दीवारों में शहर ने खुद को देखना शुरू कर दिया। रात में जगमगाती रोशनी दिन के सूरज से होड़ करने लगी। पर एक सवाल हर परत के बीच अटका रहा, क्या ये कांच की इमारतें वाकई जरूरी थी, या फिर उन्हें डिजाइन को देखने की जिद? क्या यहाँ भी मौसम से बात होती है? क्या दीवारें धूप को समझती हैं? क्या हवा बिना मशीन के रास्ते खोज लेती है, या फिर हमने परंपरा की समझ को एसी के शोर में चुप करा दिया? आज गुरुग्राम खड़ा है, ऊंचा, तेज और प्रभावशाली, पर हर ऊंचाई से एक और सवाल जन्म लेता है, क्या वास्तुकला सिर्फ देखने के लिए होती है या जीने के लिए? Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to host this panel discussion today with some of the Haryana's most thoughtful and practicing architects. Architecture in this region has evolved rapidly from plotted developments to group housings, from independent homes to large institutional mixed-use projects. But somewhere in this rapid transformation, an important question emerges. Are we designing objects or we are designing people? So I have an amazing panel here, and मैं ये discussion शुरू करने वाली हूँ. First of all, I would like everybody to introduce themselves, please. Hello everyone, this is architect Nitin Rawal. I am a founder of N17 Architecture and Designs. We are based out of Panipat and we are practicing since last 18 years. So I'm very happy to be a part of Saurabh's team at the moment as a panelist and share my views on what modernism and what actual setups are there. Yeah, thank you. Good evening, everyone. I'm architect Abhishek Kumar Vaishnav from Architectural Design Studio. We are in Gurgaon, Rohtak, and Mohali based homes. Just working within some spaces and you guys. I'm architect Hussain from RS Architects, and we are Usar based firm for the last. We're practicing for the last 26 years in this field. Thank you. Good evening. I'm architect Savijan from SRG Architects. I have been practicing for the last 17 years in a site. So we can't hold that. Hi, I'm architect Dipesh from Black M Studio. I'm practicing in SAB. I'm Bangalore as well. I'm representing India Architecture Studio in Bangalore and Black M Studio in SAB. Thank you. शीनम नंदा फ्रॉम सिरसा। 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं सिरसा में। बहुत छोटा सा शहर है, बट अब बहुत सुंदर होता जा रहा है। अब सपनों का शहर होता जा रहा है सिरसा। नंदा आर्किटेक्ट से 20 सालों से आपके साथ आज। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आर्किटेक्ट सनी से। What does people-centric architecture mean to you beyond being a buzzword? Inside architecting time. What? People-centric architecture, people-centric designs, like way. It is about working with people
for people. We are working for the end users. We are working for our clients, but it is about working with them. Yeah. Clients' participation is very important for the design process. And that is exactly what we really look at when we talk about people-centric architecture. What would you differentiate this, with the object design as the design done to the people? When we talk about object-centric, that sometimes it should be in isolation without really relating to the context or understanding the nature of the project or people directly, especially in environments. So, and when we talk about people-centric, we have to understand their requirements, their context, their climates that they are debating in. I think architect Kashish had shared this. उन्होंने यही शेयर किया था कि हम यूजुअली ओरिएंटेशन की तरफ नहीं ध्यान देते, आजकल हम डिजाइन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं rather than considering the base point. So I think that is important. So architect Nitin, at which stage should human experience take priority in design? किस मोमेंट पे हमें डिजाइन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? चाहिए सबसे पहली स्टेज होती है जहाँ से हमें सोच के चलना चाहिए, या स्टेज है किस मोमेंट पे आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपका एक्सपीरियंस और तजुर्बा किस मोमेंट पे सबसे ज्यादा काम आता है या नहीं आता, और आता है तो कैसे आता है। अभी तक हम सब लोगों ने आर्किटेक्चर की बात की, पिछले 2 घंटे से हम आर्किटेक्चर सुन रहे हैं, डिजाइन, एलिमेंट्स, सराउंडिंग्स। मैं थोड़ा सा इससे आपको एक डिफरेंट तरीके से रिलेट करना चाहता हूँ। एक टेबल पे एक अगली फैट लेडी बैठी थी और वो एक जज थी एक कॉम्पिटिशन में, और ऐसे हम लोग बैठे थे, सब लोग 5-6 लोग बैठे थे। तो वो उसने एक क्वेश्चन पुट किया कि मुझे डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब मी। शी वाज एन अगली फैट लेडी एंड शी सेड डिस्क्राइब मी। अब यहाँ है जहाँ तजुर्बा कम है। 2 लाइनों में आपको आपके सारे क्वेश्चन का निष्कर्ष देता हूँ। एक सज्जन ने क्या बोला, क्या बयां करूं तेरी खूबसूरती का, क्या बयां करूं तेरी खूबसूरती का, ना निगाहों में आती हो ना बाहों में। आई थिंक ये भी नजरिया एक देखने का। पर लेडी वही है, अगली है, फैट है। आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या काम करता है, आपके वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, आपकी उस सिचुएशन में आपका रिजल्ट्स उसी पे बेस्ड है, और वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से डेफिनेटली आती है। और ये कहना गलत है कि एक एक्सपीरियंस आदमी शायद आउट ऑफ टाइम हो जाता है, रादर मुझे ऐसा लगता है जैसे एक्सपीरियंस जो कहीं ना कहीं आपके काम होता है। नाउ लेट मी रिलेट दिस विद आर्किटेक्चर। हमने बात की, कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन यू मीट योर क्लाइंट, right from that moment when your client describes or tells you or shares with you कि मेरे ये जरूरतें हैं मेरे घर की, ये मेरा फैमिली स्ट्रक्चर है, इस एज ग्रुप के लोग मेरी फैमिली में हैं, वहाँ से ही आपका रोल प्ले होना शुरू हो जाता है। और आपका प्रेजेंटेशन, आपका पहले उस चीज़ों को समझ के उसके सामने उसे डालना, see how you pitch is what your experience is, and it will always come with the experience. ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस के साथ से पहले आ जाएगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। एक्सपीरियंस does not mean age, it doesn't mean how much number of years you are being practicing in, it means कितने सारे तरह की सिचुएशन से, कितने सारे तरह के लोगों से, कितने सारे डिफरेंट आपने आइडेंटिटीज को फेस किया, उनके साथ आपने एक डायलॉग एक्सचेंज किया, उन्हें समझा और फिर अपने आप को पिच किया। आई थिंक दिस इज व्हाट ऑल एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता किसी भी डिजाइन का सक्सेस और फेलियर। आपकी फर्स्ट मीटिंग में 50% वर्क इज डन,
बाकी तो सब आखिर तक सिर्फ 50% ही हो जाता है, 50% में पहली मीटिंग में डन करते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट की ड्यूटी बनती है क्योंकि क्लाइंट तो मुझे क्या लगता है क्लाइंट एक बच्चे की तरह होता है और हम पेरेंट की तरह होते हैं। क्लाइंट बहुत बार हमें कन्वे नहीं कर पाता जो वो एक्चुअल उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आई थिंक इट इज अप टू अस ऑल्सो। पर सर एक्चुअल में टाइम थोड़े से चेंज हो गया मुझे लगता है। क्लाइंट पहले बच्चे की तरह होता था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 2000 में। अब नहीं अब वो बहुत ही शरारती दोस्त होता है, अब वो बहुत ही शरारती दोस्त होता है। यार उसे मालूम है कहाँ शरारत करनी है और मैं कैसे सामने वाले को पिन कर सकता। बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो ये जो साथ चलता है ना उनके, मोबाइल वो सबसे बड़ा न्यूसेंस है आज हमारी इंडस्ट्री का। आज हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में सबसे बड़ी हिंड्रेंस न्यूसेंस तो मोबाइल का। यस सो वहाँ उसे आपको जो ट्रैक करना है वो आपके एक्सपीरियंस से ही आता है, उससे बिना आपको समझ नहीं आता कि आप उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करें। सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं। वही तो मैं किस सिचुएशन में या जब कोई क्लाइंट है तो किस तरीके से कौन सी मिस्टेक्स हैं जो क्लाइंट्स कर देते हैं पीपल सेंट्रिक अटेम्प्ट्स में? देखो क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना आप सब जानते हैं कि कितना मुश्किल है। आजकल उसके पास इतने सारे सोर्सेज है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, तो वो इतने सारे सोर्सेज हमारे पास लेकर आता है कि मैम हमें ऐसा रूम चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए, लेकिन हमें उससे बहुत ही मतलब ईजी में थोड़ा उसको समझाना पड़ता है कि नहीं ये तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं सेट हो रहा क्योंकि तुम्हारा स्पेस कम है। क्योंकि जो पिंटरेस्ट है वो तो साइज नहीं बता रहा ना, वो तो सीधा यही बताता है कि यस ये इंटीरियर है, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। बट हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास सिर्फ 24 फीट होता है। ऐसे भी क्लाइंट है जिसके पास 24 फीट वाइड है हाउस और उसके बाद वो कहेगा कि मुझे तो एलिवेशन चाहिए 50 फीट वाला, तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसको बहुत इतने इजीली मेथड से समझाना भी बहुत मुश्किल है, उसको बहुत टाइम लगता है हमें समझाने में। बल्कि आप मानेंगे नहीं, हमारे फिरसा में हमें इवन 10 स्केचेस देने पड़ते हैं रेडी में। 10 स्केचेस हमें समझाना पड़ता है कि आपकी ये राउंड यहाँ नहीं बन पा रहा बिकॉज आपका एरिया नहीं है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे संभालते हो? उसको थ्री बनाकर अपने लैपटॉप से उसको सामने बिठाकर 1-2 घंटे देने पड़ते हैं, तब वो समझ पाता है कि सच में मैम सही कह रही है कि अब ये चीज़ हमारे नहीं बन पाएगी। तो बहुत मुश्किल होता है छोटे सिटीज में थोड़ा क्लाइंट को संभालना, और वो ख्वाब होते गुड़गावा वाली और वो रहा सिस्टम तो थोड़ा मुश्किल है। तो नितिन जी, हाउ डू यू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द क्लाइंट डिमांड्स एंड द यूजर नीड्स? सर अब क्या आजकल के 2 टायर 3 टायर सिटीज में आर्किटेक्ट कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है? वो जनरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो क्लाइंटेज है वो क्लाइंटेज आपकी इमोशनल बैकग्राउंड के साथ में है। जब वो अपना घर बनाते हैं वो ये नहीं देखते कि मेरा प्लॉट क्या है, मेरे बजट क्या है। वो क्या है कि हस्बैंड वाइफ कुछ और कह रहे हैं, बच्चे कुछ और कह रहे हैं और जेब कुछ और कह रही है। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट होती है और आर्किटेक्ट एक तरह से साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बन जाता है और उसको कन्विंसिंग लॉयर बन जाता है कि भाई साहब ये सही है, ये गलत है। ये इस तरह से जर्नी इवॉल्व होती है। तो डिज़ाइन की जो विक्ट्री है और हम जिस तरह से डिज़ाइन को अपने आर्किटेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, वो रियलाइज करता है। बट ही और शी गिव्स हर ओपिनियन ऑल्सो कि भैया मैंने ये देखा है और मैं इस हिसाब से भी करना चाहता हूँ। सो आजकल डिज़ाइन का फैक्टर कम हो गया बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डिज़ाइन नॉइस बाय द सोशल मीडिया एंड ऑल। उस कारण से थोड़ा सा एफर्ट्स आर्किटेक्ट के ज़्यादा लगने लग गए हैं। बट अ गुड आर्किटेक्ट इज लाइक जो उनके अंदर झांक के उनको क्लैरिटी दे के अपने डिज़ाइन को उनके कन्विंस करके एक म्यूचुअली एग्रीड सिचुएशन बनाए। तो आप किस चीज को प्रेफर ज्यादा करते हो, पीपल सेंट्रिक या ऑब्जेक्ट? बेसिकली अगर आर्किटेक्चर को देखा जाए तो मेरा मानना या इससे ज़्यादा जितने आर्किटेक्ट्स हम बैठे हैं, सबसे पहले अप्रोच हमारी पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। द स्पेस शुड बी फंक्शन। किस तरीके का हमारा क्लाइंट है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह का बिजनेस या किस तरह की जॉब कर रहा है, जो दिन भर वो अपने काम से घर पे आता है, उसको जो स्पेस यूज करना है बेसिकली, तो उसके हिसाब से स्पेस प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं। ये चीज हमने सबसे बड़ा एग्जांपल देखा था पेंडेमिक के टाइम पे, अगर आपको याद है। इससे पहले प्री पेंडेमिक
हम जो डिजाइन्स कर रहे थे या जो चीजें हो रही थी वो मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्डिंग्स, कि बाहर का फसाड क्या है, सुंदरता क्या होती है। अच्छा, सुंदरता के भी काफी रूप होते हैं। आपकी नजर में सुंदरता बिल्डिंग किस वे में जा रही है, मेरी वे में, मैं किसको सुंदरता बोलूँगा बिल्डिंग में। पर पोस्ट पैंडेमिक चीजें बदली है। अब जो क्लाइंट्स हैं उनकी भी अप्रोच मोस्टली बिल्डिंग की जो डिजाइन से ज्यादा कंफर्ट लेवल पे या उनके हिसाब से चीजें, जिस तरह की डे टू डे लाइफ है, क्या चीज उन्हें किसके बाद क्या प्रोसेस करनी है, उसके बाद क्या स्टेप उनका होना है घर में, फिर उसके बाद उन्हें कब जरूरत पे जाना है या शाम जाने क्या चीज है। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट यही चलेगा कि बिल्डिंग जितनी भी है वो अब पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए, पीपल सेंट्रिक। नितिन रावल जी, मुझे लगता है आर्किटेक्ट हम हमेशा ही सपना देखते हैं। अभी भी अगर हम कुछ बैठे होंगे तो कोई फॉल सीलिंग देख रहा होगा, कोई लाइटिंग देख रहा होगा, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। कौन सी मोमेंट पहले थी when you started your career जब आपको फील हुआ कि नहीं इट शुड बी पीपल सेंट्रिक? क्योंकि सी हमें फ्लैशी चीज़ें चाहिए, हमें पसंद है, लोगों को पसंद है, बट वो कौन सा when you started working you started with profession, कौन सी मोमेंट ऐसी थी जब आपको लगा इट शुड बी पीपल सेंट्रिक नॉट ऑब्जेक्ट सेंट्रिक? आई थिंक इस तरह का टाइम तब था जब आई डेल्ट विद द फैमिलीज विच हैड ऑलमोस्ट लाइक 50 people who were the decision maker at that moment. So facilitate almost like it was almost 2,000 square yard of setup for a residential unit and 4 brothers were there. तो इतने सारे लोगों को अलग अलग नीड्स के हिसाब से with a lot of age groups from 4 years old till 80 years old, 3 generation living over there. Then I felt the need, okay यार ये सब सभी के एज ग्रुप से हिसाब से इट हैज टू बी पीपल सेंट्रिक, इट हैज टू नॉट टू बी लाइक दैट कि मैंने डिजाइन बोला और वैसा होगा। तो वहाँ अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करे, तो मेरा सोचा इनपुट उस समय से ज़्यादा बढ़ा। अदरवाइज यूजुअली जब एक आर्किटेक्ट नया प्रोसेस स्टार्ट करता है डिज़ाइन का, वो चाहता है कि उसका डिज़ाइन सुपरली इम्प्लीमेंट हो, फंक्शनल हो और उसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो शुरुआत में ऐसे होता है, एंड देन जैसे 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 आप इमोशनली इस तरह के सेटअप में क्लब अप हो जाते हो, देन यू गो फॉर मोर पीपल सेंट्रिक देन ऑब्जेक्ट सेंट्रिक। वैसे शीलम जी, आपको अब whenever we started studying, हमारा फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, हमें एक रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं कि ठीक है इतना बेडेड होटल बनाना है, इसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आपको क्या लगता है एजुकेशन में वाकई हमें ये सिखाया जाता है दैट इट हैज टू बी पीपल सेंट्रिक रादर देन बी जस्ट बी ऑब्जेक्ट सेंट्रिक? ओके, इट इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर के एंटर किया एंड द थिंग शुड बी डन। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरा बेटा यहीं आया हुआ है और MIT पुणे से, ऑल्सो डूइंग आर्किटेक्चर, राइट? MIT पुणे से कर रहा है गर्ल, और उसको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सिखाई जा रही हैं कि कैसे क्लाइंट से डील किया जाता है, कैसे हाउसिंग में, या कैसे उनको सिर्फ एक ही तरह की स्टडी चल रही है। बट पुणे में थोड़ा अलग है, थोड़ा मामला डिफर है। वहाँ पे थोड़ी हरियाणा से तो मच बेटर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी थ्योरी नहीं है और समथिंग प्रैक्टिकल है। वो जो शायद हमने 12 आवर्स वाले एग्जाम दी है वो अभी इनके नहीं है, तो सिर्फ इनका सबमिशन है एंड इट्स ओके। तो पर वो चीज़ें अभी भी नहीं सिखाई जा रही कि जो आपको आफ्टर डिग्री फेस करना है। आपको आफ्टर डिग्री क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट के सारे नखरे सहने हैं भाई, वो तो सीखो तुम, वो नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे आज तक। और इसकी एक मेजर प्रॉब्लम ये है जो जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं और वहीं वो पढ़ाने लग जाते हैं, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। वो मुझे लगता है पैटर्न ही बन गया है। आई थिंक ना हरियाणा का अलग पैटर्न है, महाराष्ट्र का अलग पैटर्न, आई थिंक तो पंजाब का अलग है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ बेटर लग रहा है पुणे का, मतलब महाराष्ट्र का। कुछ मतलब ये कि चलो बच्चों को 12 आवर्स वाला वो एग्जाम नहीं देना, थ्योरी एग्जाम नहीं देने, तो बस आपको वो सबमिशन करना है और दैट्स ओके। तो थोड़ा लोड तो कम है ना एटलीस्ट। बट ये कुछ ज्यूरीज जैसे इनकी ज्यूरीज होती है, तो वो मुझे थोड़ा पैटर्न इनका थोड़ा बेटर लग रहा है। मुझे लगता है हरियाणा में आने में भी थोड़ा टाइम है, शायद इन चीज़ों को ना थोड़ा वक्त लगेगा। तो होना चाहिए एजुकेशन में मेरे हिसाब से पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे आपको सेटिस्फाइड करना है।
तो ये तो सिखाना ही नहीं है ना, हरियाणा में कोई नहीं सिखाता। और तभी तो बच्चों में अब देखो कितनी ईगो हो गई है, और वो माने के दीदी का टैग लगती है, वो बोलते हैं सवाई मार्केट तक, और उसके बाद तो स्लाइड के बच्चे, सर आप सुनते हैं, मैं सुनती हूँ, पर बच्चे नहीं सुनते आजकल, ऐसा है ना? बिल्कुल समझेंगे ये चीजें हैं, तो एजुकेशन में आई थिंक ये चीजें होनी चाहिए। Abhishek ji, pandemic के बाद how did the designs were reshaped? As in requirements के accordingly. Pandemic, especially, you know, we thought of cleanliness. Now we are talking of workstation, more and more of workstations. There are big requirement आई है, obviously, two people are definitely working on PCs. So they need separate areas for that. What do you think, or whatever you can just share? मैं पोस्ट पैंडेमिक सिर्फ वर्क लाइफ के साथ ही बैलेंस नहीं था, हमने उसके साथ में बहुत तरह की चीजें सीखी हैं, खुद भी सेल्फ भी, और जो क्लाइंट के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आज पे भी, कि पहले लोग चीजों को शोकेस में ज्यादा रखते थे कि सोफा दिखने में कितना ज्यादा अच्छा है, या जो स्पेस वो फैमिली लॉन्च बना रहे हैं वो लग्जरी में कितना जा रहा है, डबल हाइटेड है, और उसके बाद काफी चीजें रिफ्लेक्टिव है, सरफेसेस रिफ्लेक्टिव है, या बेडरूम्स भी हो गए तो वो कोजीनेस को छोड़ते हुए थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्निटी में, उसमें भी हम स्टोन सा क्लैडिंग कर रहे हैं। तो पोस्ट पैंडेमिक ये चीजें लोगों को थोड़ी ज्यादा तरीके से समझ में आई कि फैमिली लॉन्च का असली अर्थ क्या है, कि वहाँ हम जब अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे थे, जब बाहर किसी से नहीं मिल रहे, जब कोई देखने नहीं आ रहा, बेसिकली सपोर्ट कि हमें घर खाना है, कोई देखने नहीं आ रहा, तो उस एरिया को यूज कैसे करना है, उसमें कंफर्ट कैसे लेके आना है। फिर जिस तरीके से हम किचन को यूज कर रहे हैं, या उसके बाद हम डाइनिंग एरिया में जा रहे हैं, या ओपन स्पेसेस को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें पीपल सेंट्रिक चीजें वो अब ज्यादा पोस्ट पैंडेमिक चीजों को समझ में आई है लोगों को, और इस चीज को वो डिजाइनिंग प्रोसेस में रखवा देते हैं। Absolutely. Dipesh ji, how would you balance aesthetics with inclusivity and comfort? Now, my Mr. that it's a unified word जो कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में डालें, किसी भी डिजाइन सेंस में डालें, तो if you will balance anything, it will start to give you shape. Like a flower has a balanced shape. So if when you are saying the flower has a balanced shape because the shapes it is looking the balance, the center point, and I want to start with the example of golden ratio, which is making and describing how the universe is balanced. So if we start from there and we put right things in our design, like the volumes first I want to take. If you are choosing the right volume of the design, right surfaces for the design, so automatically it will balance the right design. It will take you towards the right balance. And if the balance is correct, I guess in my designs or in other architects' design I've seen, if that balance is good, great, and you see the aesthetics is coming automatically. You don't need to much work hard for the aesthetics to make it balance. So for me, this is the right way to explain how balance should write the design. Abhishek ji, can iconic architectures can also be people-centric, or it can only be flash? मैं वापस से क्वेश्चन उठता है कि आइकॉनिक आर्किटेक्चर है क्या? पहले तो उसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। आइकॉनिक, अच्छा सर बीवी दोषी सर की प्रोजेक्ट है, IIM बेंगलोर हो गया या आरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग हो गई, अगर हम उनको स्टडी करें वो अपने आप में आइकॉनिक बिल्डिंग है, परंतु साथ ही साथ में वो पीपल ओरिएंटेटेड पीपल सेंट्रिक बिल्डिंग भी है। वो किस तरीके से उन्होंने वॉइड्स को या स्पेसेस को यूज करा है कितने बेहतरीन तरीके से, वो चीज दर्शाती है कि आइकॉनिक साथ ही साथ पब्लिक ओरिएंटेड के साथ भी चल सकती है। एक एग्जांपल इंडियन हैबिटेट सेंटर है दिल्ली में, इस तरीके से उन्होंने आउटडोर कॉरिडोर्स को या पीपल गैदरिंग स्पेसेस को और शेडिंग डिवाइसेस को किस तरीके से यूज करा, या जो जॉब करने वाले आ रहे हैं लोग वहाँ पे वो किस तरीके से लंच टाइम में बाहर निकलते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट वो फील करते हैं, वो अलग ही दिल्ली है एक तरीके की। तो मेरे हिसाब से आइकॉनिक जो
ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, वो पीपल ओरिएंटेड के साथ चल सकती है। जैसे there's a building designed by architect Charles Sawyer जहाँ पे क्रोमोथेरेपी करना भी है. क्रोमोथेरेपी means के lighting से ही. So there's one room जहाँ पे floor ceiling like everything is orange. In the other room it's red. In the other third room it's white. So basically when you enter into those rooms तो हमारा पूरा psychology पूरा change हो जाता है. So Nitin ji, what responsibility, and obviously this affects the mind also. So what responsibility do architects have towards mental well-being? देखिए सर, आई थिंक कि इसमें एक आर्किटेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, बिकॉज सोने को तो कमरा ही काफी है, सोने को तो एक कमरा ही काफी है, बाकी मकान में आपका गुरूर रहता है। गुरूर यहाँ पे अभिमान नहीं है, गुरूर यहाँ पे आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। गुरूर किस चीज से होता है एक आदमी को कि जब कोई मेरे घर में आए, मैं उसे अपना घर दिखाऊं, उसे पसंद आए और उसके बदले में मुझे तारीफ मिले। सेकंड क्या होता है कि जब मैं मेरे घर को यूज करूं तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, एक आरामदायक फील मिले और एक कंफर्ट लेवल मिले। So I think कि architect, as he already said, rather I think Nitin Nagar has already said, कि we act as a psychiatrist also. Not only we design the building, but we first have to study the mental state, the needs, the requirements of the client. Only then you can start your sketching, and only then you can come close to what exactly your client wanted. So mental well-being for me is a place where one gets back home in the evening. He is relaxed. The old people, they can meditate. That is their relaxation. A kid can enjoy the space. He should have spaces to play. And similarly, the other members of the family should get the adequate comfort, the adequate happiness when you reside in a particular zone. और ये सब चीजें आर्किटेक्ट का आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने का एक पार्ट शुरू से थी, सिर्फ हमने रियलाइज इसे आज एक डिफरेंट वर्ड से करना शुरू किया है। जो क्या कर रही है, comfort of the end user, happiness of the end user. उसके लिए पहले भी आर्किटेक्ट्स इनोवेटिव अप्रोच से चलते थे, आज भी हमें और आने वाले समय में भी हमें उसी अप्रोच को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा डिजाइन, एक हेल्दी डिजाइन, लेट मी यूज द वर्ड हेल्दी नाउ, एक हेल्दी डिजाइन दे सकते हैं हमारे क्लाइंट को। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट what we are discussing. सनी जी, एनर्जी मॉडलिंग की बात करते हैं। अगेन आई टॉक ऑफ AI एंड आई टॉक ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। हम आज जो डिजाइन बन चुके हैं, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, फॉर नेक्स्ट 10 years is a separate story. What about 30-40 years later? Do you think all these softwares or AI, all these futuristic designs that we talk of, they can help us make people-centric designs, or we need to be very careful and we should involve the softwares only as much as it's required? No, I think because AI is a tool, हमको वही समझना है, like we are the navigators, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा we are the decision makers, AI is just a tool. So हम सोचें कि AI डिजाइन कर रहा है, that's a different platform again. AI is there to help us save time in our projects. We are able to work quickly with AI. It is assisting us, but eventually decisions are made by us, and they are made in accordance with the end user. As in, AI is just there as a tool. And otherwise, if we talk of other softwares, any other software that any one of you are using, considering the, So all the software, energy modeling or something else? all the softwares are there. They are giving them options, faster options, which is fine. But then input goes from us. I mean, humans are
like we are the people who are deciding. We are putting in the data there. If we are putting the right data, we are getting the right output. So are we AI is really not using working on AI itself. as in any one of us or in the audience can answer? Are you really using AI in your project? Which software are you using? We are using D5 as an AI tool for parametric designs and our 3D modelings. But again, I want to say one thing. These are all tools basically. Design philosophy वो आर्किटेक्ट का ही रहता है. ये टूल्स हमें हेल्प करेंगे कि हमारा काम फास्टर हो, रेंडर्स अच्छे निकले, सेटअप डिजाइन जो कॉन्ट्रैक्टर्स को देने हैं वो तरीके से समझ आ जाए. बट ओवरऑल थॉट प्रोसेस को ये रिप्लेस नहीं कर सकते आई. एंड गोइंग फॉरवर्ड 30-40 ईयर जो मैम का क्वेश्चन था, आई थिंक ये दोबारा से पीपल सेंट्रिक होना स्टार्ट हो जाएगा. हाईटेक से बिल्कुल सिविलाइजेशन चेंज अप करेगी और कल्चरल सेटअप पे मूव करेगी अलग अलग तरीके से. मेरा ये मानना है. Also, it's about ethical responsibility. I mean, AI is designing. I mean, can you really say that it is AI design or your design? I mean, you have to be ethically right and responsible. So it is you who are designing the thought process. So we have to keep that as a tool. दिपेश जी, लास्ट क्वेश्चन करिए. हम आज अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं. अगर हम पुराने जमाने में जाते हैं और जैसी जगह पे हम अभी बैठे हुए हैं, लाइक दिस इज you know, come up amazingly well from all those civilizations. Mughal भी देखा, you know, Indus civilization भी देखा आपने. I'm sure everybody knows about the history of Haryana. What do you think, or what do you think we should learn from that vernacular architecture that has been there in Haryana or somewhere else? Yeah, it's nice to show first of all. Vernacular architecture or vernacular naam hai, it is from the society, it is from the people, it is in the nature. उसे यूज कैसे करना है हम सिर्फ ये डिफाइन कर सकते हैं. हमसे आज से 50 साल पहले 100 साल पहले भी लोगों ने अपने आसपास की चीजों को एक प्लेटफॉर्म लिया और उसको यूज किया. उन्होंने राजस्थान में पत्थरों से महल बनाए, फोर्ट्स बनाए, उस समय आर्किटेक्ट भी नहीं होते थे. और they have done quite well. But अभी जो वर्नाकुलर है वो सस्टेनेबल भी लोगों ने मिक्स कर दिया है. They are thinking केन को लेके हम वर्नाकुलर बनाते हैं, बट केन वर्नाकुलर है बट उस एरिया में जहाँ पे केन हो. हमारे लिए वर्नाकुलर, हमारे पास बहुत सारा मैड है, तो ब्रिक इज वर्नाकुलर फॉर अस, बट पीपल से ब्रिक इज आल्सो नॉट वर्नाकुलर. If you are using the right method in your city, it is vernacular. So for us, I guess in this space we are, in the region we are, तो अगर हम वहाँ का सस्टेनेबल और वहाँ का वर्नाकुलर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कार्बन कंटेंट भी कम होगा और उसी से हमारी एनर्जी लेवल भी हम एफिशिएंट बना पाएंगे, which will give us lot of prosperity to our buildings, upcoming buildings. और वर्नाकुलर में आज हमने बहुत सारे डिजाइन देखे, they have done very amazingly in bricks. So that was a live example for all of us. They have achieved a wonderful things in vernacular. So for me, vernacular is a subject where we are using the material with a sense. जहाँ पे आप क्लाइंट का इतना सारा पैसा बहुत दूर से प्रोडक्ट मंगा के मत वेस्ट करो, rather than उसी मनी को you use one the basic products where we are available और उनको एक best style से you can use it. That's right. So I think we're done with the questions. Any questions from the audience, please? Yes. Anybody would like to share any experience or maybe just put a question to the panel? Anybody? I think some questions should come up. So thank you so much. Thanks to all panelists for sharing such honest and grounded perspectives. What stands out clearly is that people-centric design is not a trend, it's a responsibility. It reminds us that architecture is not about buildings alone, but about lives lived within them. As architects in Haryana and across India, we have the power to shape not just skylines, but everyday human experiences. Thank you so much for joining us today. Let's continue designing with empathy, responsibility, and purpose. Thank you so much, everybody. Thank you.